अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस जी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम सिया कॉन्वर्सेशंस करते हैं टू ट्राई एंड गेट अवे फ्रॉम द यूजुअल पॉलिटिकल नैरेटिव एंड टॉक अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बाई पार्टिजन इकोनॉमिक पॉलिसी, बिकॉज हमें सिर्फ पाकिस्तान से गर्ज है और इसकी तरक्की से गर्ज है। हमें किसी की साइड नहीं लेनी। तो आप सबको पता है कि ये बहुत बहुत अच्छे बड़े मुफक्किर यहाँ आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ डिबेट कीजिए, गालियाँ भी दीजिए, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे गालियाँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि वी गॉट मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन। ज़ुबैर उमर साहब, very very well known politician, has been with PMLN for a long time, has been a minister with PMLN. Now he's uh, still in politics, kind of in a steady hold mode. But let's leave it aside and let's talk about economics with him. Zubair Saab, welcome to the show. सबको पता है Zubair Saab IBM में भी रहे हैं. Zubair Saab has had a very good technocratic background. He was in charge of IBM in Pakistan. He's a very well-known professional. So it was a welcome thing to see Zubair Saab going into politics, because we need educated people like him with a corporate background to go into politics, because quite frankly, government is not without its technocracy. Government has to have technocracy. Politics alone कुछ नहीं करेगी. तो जुबैर साहब, यहाँ से शुरू करते हैं। आपने माशाल्लाह 2-3 वजारतें भी संभाली। डिड यू फील यू वर सक्सेसफुल? पहली चीज, इन योर एजेंडा, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस टेक एन एजेंडा टू द गवर्नमेंट। मैं एक उससे पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आई मीन इन अ सेंस के यस, आई हैड अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड all our brothers went into corporate world because obviously that was the only way, because जाहिर सी बात, अगर आपके पास कुछ और जायदाद या इंडस्ट्रीज वगैरह ना वाली साहब को भी गए तो what else. So all of us did our MBA from IB and then went to corporate world, and I had my 26 years with IBM, and mostly outside Pakistan. और अपनी मर्जी से छोड़ा था. So ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमारे तीनों भाई, Asad left when he was CEO of Anglo, and I left IBM when I was heading Middle East Africa. For the, I don't know, won't say for the love of Pakistan, but I thought there has to be something else with the background that I had achieved in education and politics में बहुत ज़्यादा interest था. So that is the reason that I went. Whether that was it was both good and bad. I think I have no regret going into politics and joining PMLN now that I. But एक bottom line जरूर आपके साथ शुरू में शेयर कर दूं और आपके चलने वालों के साथ भी, ये जो बैकग्राउंड से जाते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जाते हैं, इनके लिए मुश्किलात भी सबसे ज्यादा होती हैं. And you can see the result. I mean, at the end of a decade or so, both Asad and I found ourselves. So it's no coincidence. We found ourselves out of the political process. Because जो traditional politics में रहते हैं, उनके लिए वो not only they continue to remain in politics, but they continue to prosper as. So Mehta Ismail is another example which who I can quote, who went in politics and real time politics जिसको कहते हैं. असद ने भी आपको पता है, मैंने for a technocrat to do that real politics, jalse jalooस and whatever it takes. So it's a bitter experience for an educated person. So अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि माशाल्लाह यू गिवन मी मेनी एग्जांपल्स. आप लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो वॉलंटरली अपनी स्किल्स लेके आए, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, एंड यू डिड इट द ट्रेडिशनल वे. हम लोग तो जो है ना, हम लोग, मेरे जैसे लोग तो हम बाहर रहते हैं और जब बुलाले चले जाते हैं. आप तो बाकायदा अंदर बैठ के आप लोगों ने जदोजहद की और काम किया, और आपने ये, आपके लफ्ज़ में बड़े मज़ा के बिटर एक्सपीरियंस. प्लीज बताइए व्हाई. bitter experience because when the moment of truth comes, then वो कहते हैं ना उसको कि आपको कुछ बहुत से लोग कहते भी थे कि आपको एक वक्त आएगा कि टिश्यू पेपर इतना गिरा के या बस के सामने फेंक दिया जाएगा, because we don't have that background and someone to support. कि ये एक होता है ना, जैसा PMLN की तो क्लियर एग्जांपल है, हर एक का बाप या हर एक की माँ या हर एक का चाचा उस पार्टी में है. So there is a lot of support. तो बिटर इसलिए पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ
it does not set, and especially consider Nadeem that we come from Karachi. So Karachiites जो पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल जब मुझे मिफ्ता यासर वगैरह से मिलते हैं तो यही कहते हैं कि we were very much interested to go into politics. I mean, people who are in business and have done very well over the decades, come from business families or corporate world. Politics तो सबका ही इंटरेस्ट होता है, हर पाकिस्तानी के इंटरेस्ट होता है कि इट्स अ गुड एग्जांपल जी जुबैर या असद या मिर्जा इस्माइल, they make it big in a way with no political background, with no connections and so on. So what happened? So when they obviously sit and go through the stories, so when the moment of truth came, so Mr. Ismail was dumped because Isaac Dar was to be promoted and Isaac Dar didn't like Mr. Ismail. So जब आपका clash इस level का हो जाए, so you will not survive. So that is the risk that you take, and all those who obviously ये बड़ी मजेदार आपने बात की कि अली चीमा का जो काम है, और कुछ लोगों को हमने भी पीआईडी में किया था, हमने देखा था पॉलिटिक्स जो है वो 200-300 फैमिलीज का खेल है, और फैमिलीज का खेल है लिटरली। तो आपके जैसे बंदे जो आते हैं वो तो बड़े अनयूजुअल लोग होते हैं कि दे मैनेज टू गेट इन, ठीक है, बट फिर वो कोटेल्स पे आते हैं तो ऑब्वियसली देख वो झड़े भी जा सकते हैं। तो ये भी है सिचुएशन विच इज़ वेरी ट्रेजिक सिचुएशन अबाउट आवर कंट्री। because more people from non-political background must enter politics, mainstream politics, to make a difference because they come up with different ideas, new ideas. Not necessarily they are better, but at least उन्होंने दूसरे चीज भी देखी होती है कि बट देखिए आपने मैं आपसे इस पे बात पूछूं, हमने जो तहकीक की है उस पे ये लगता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत खामी है। तो मैं आपसे क्विकली पूछ लूं कि आपका क्या ख्याल है। एक तो हम सोचते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट खत्म होना चाहिए, अमेरिका में भी खत्म हो रहा है, अब वो ले आ रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो लेके आ रहे हैं रैंक चॉइस, वो लेके आ रहे हैं सेकंड राउंड वोटिंग। तो क्या हमें इस किस्म की चीज़ को अडॉप्ट करनी चाहिए? नंबर दो, जो अमेरिका ने अडॉप्ट किया, बहुत मुल्कों ने अडॉप्ट किया, वो टर्म लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर है, 2 दफ़ा बन सकते हैं। मैं तो फर्दर जाता हूँ, मिनिस्टर भी 2 दफ़ा बने भाई, कोई और लोगों को चांस दें। नंबर तीन, कि आप जब आते हैं तो पार्टीज में कम से कम नॉमिनेशन हो, ये नहीं कि लीडर जो है वही नॉमिनेट करें, कम से कम कोई ग्रास रूट्स नॉमिनेशन मैकेनिज्म जैसे बाकी मुल्कों में है वो होना चाहिए कि आप किसी तरीके से आपके वोटर्स आपको इलेक्ट कर रहे हैं, इवन फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन पार्टी मेंबर्स वगैरह। क्या ये चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें हमें सोचनी चाहिए या कि दिस डेमोक्रेसी इज वर्किंग? this democracy is not working. There are a lot of good things that you are talking about. आपने 3 पॉइंट्स का जिक्र किया, लेकिन ये इसको हम कहते हैं ड्राइंग रूम की डिस्कशन, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे चीजें आती हैं, बट वो कैरी करना, आगे लेके जाना और उसको मीनिंगफुल बनाना, बिकॉज हमारे एक एक्सपीरियंस है, 4 मिलिट्री इंटरवेंशन हुई तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी बात की जाती रही मुशर्रफ साहब के दौर में भी कि क्या डेमोक्रेसी इन द ट्रेडिशनल मैनर इज गुड और बैड, और सब कहते हैं हाँ नहीं इतनी अच्छी नहीं है, देखिए ना जी अगर ऐसे हुआ जी बीए की डिग्री होनी चाहिए जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया था. Just taking one example, why it then backfired? Because it came from a non-political person, from a non-political party, which did not have the support of the masses or anyone. तरीका ये होता है कि now we are talking about जो आप suggest करें fundamental changes in the constitution. Now, when you are making a fundamental change in the constitution, उसका तरीकेकार चाहे अमेरिका हो, ब्रिटानिया जो advanced democratic countries हैं, वहां उसमें आप ये अवाम के पास लेके जाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड देन गेट देयर सपोर्ट, एंड इफ पीपल सपोर्ट यू, के चीज जो आपने जिक्र किया, फिर आप वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं एंड देन इट कैन सर्वाइव, अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव. सो बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं जो हम बात करते हैं, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करना. दूसरा जो मुश्किल है, जो चैलेंज है इस सबका, कि बहुत अच्छी पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन आपने खुद कह दिया कि 200-300 फैमिलीज हैं. अब 200-300 में भी अगर आप उसको रियल मानों में करें तो 8-10 हैं जो रियल पावरफुल तकली फैमिलीज है. आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फ्यू इयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स फॉर एग्जांपल, और सो चौधरीज हैं, शरीफ हैं, जरदारी हैं फॉर एग्जांपल. तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि उसमें उससे निकल के आना पाकिस्तान में एटलीस्ट फॉर नाउ तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी होगी. अच्छा, फिर मुझे ये बात बताइए कि अब माशाल्लाह एज यू सेड देयर आर मेनी ऑफ यू, मिफ्ता भी है, आप भी हैं, असद भी है, देयर आर नंबर ऑफ द पीपल जो आई थिंक जो कि इस वक्त सिस्टम में मार खा के बाहर निकल चुके हैं,
मुझे एक बात बताइए, बाकी दुनिया में देखता हूँ कि एक मूवमेंट चल जाती है, जैसे सफ्रेजेट मूवमेंट थी, जैसे वो मार्टिन सिविल राइट्स की मूवमेंट थी, और भी बड़ी मूवमेंट्स हैं जो चल गई हैं, जैसे अब इसराइल पे चल रही है। हमारे यहाँ क्या आप जैसे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, टेक्नोक्रेटिक एटसेट्रा, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू यू कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, कैन यू नॉट मेक सच अ मूवमेंट? मिफ्ता से भी ये पूछता हूँ कि व्हाई कांट यू गाइस गेट टुगेदर एंड से कि चलो जी इलेक्शन तो बाद में लड़ेंगे, पहले लेट्स गेट द इलेक्शन सिस्टम गोइंग, या लेट्स गेट द पार्टी सिस्टम गोइंग। इट्स अ गुड सजेशन। देखिए, मसला ये होता है कि आप जिस तरह मिफ्ता तो इज नो पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट उससे भी अगर आप पूछेंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक अ ब्रेक थ्रू एंड देन टॉक अबाउट मेजर चेंजेस, एवरीवन देयर इज एन एग्रीमेंट, मेरा ख्याल है, among the non-traditional political families there is an agreement, चाहे वो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हों या आम मिडिल क्लास हो, कि ये the present system is rotten, it has not delivered, it has massively failed. क्योंकि at the end of the day, what is a parameter for success or failure? It is about the main stakeholders, पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदे पहुंचे हैं इस प्रेजेंट सिस्टम से, और गोइंग फॉरवर्ड क्या इसको फायदा पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। इट्स अ रॉटन सिस्टम दैट एवरीवन एक्सेप्ट फॉर दोज फैमिलीज दे एक्नॉलेज। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है नदीम, कि हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनमें इतनी डेप्थ, इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, इंसाइट है, तो समझने की कि सिस्टम इज नॉट वर्किंग। उनके लिए पुल बनाना और अंडरपास बनाना इज अ मैटर ऑफ डिलीवरी। एजुकेशन किसी को मिले ना मिले इज नॉट एन इशू। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो कि सबसे फंडामेंटल चीज है, दैट्स नॉट एन इशू। दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज लैंग्विशिंग far, far below than uh, all the countries. I'm not talking about advanced countries in Europe or Far East and so on. मैं normal countries की बात कर रहा हूँ, जो हमारे ही जिनसे हमारा मुकाबला, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, even some of the Arab countries now are making strides in that। education में आप देखते हैं, हेल्थ केयर में देखते हैं, और दूसरी चीजों में देखते हैं। सो आई थिंक एक तो एहसास जो है वो, अब वो मूवमेंट चलाए कितनी, देखना, अब मैं और मिफ्ता जैसे लोग ये कर सकते हैं जो कि हम करते हैं, कि मेरे से कोई इंटरव्यू के लिए कहते हैं तो मैं उसको आपका तो मुझे पता था आपने पढ़ी लिखी बातें ही करनी है। मैं कहता हूँ यार आप प्लीज आपने वो बातें एजुकेशन और हेल्थ और ये अवाम की जरूर करनी है, एंड हाउ वी हैव फेल्ड। वैसे पुल और अंडर पासिस की बात कम करना, बिकॉज आई डोंट कंसिडर इट, बिकॉज ये तो होता है ना, हम 1950 में बैठे होते तो हम कहते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त धोखा है, सो सो your point is valid। I mean, something has to happen। we also discuss मिफ्ता के लेवल पर भी और सबके लेवल पर भी, और अच्छा, ये बहुत एक कोई और बात ग्रुप। बताइए कि नाउ आई एम श्योर, क्या कहते हैं, लाइक ऑल ऑफ अस, व्हेन यू वर इन आईबीएम एंड व्हेन यू वर ओवरसीज वगैरह वगैरह, हमारी शामें गुजरती थी बातें करते हुए कि पाकिस्तान का क्या करना चाहिए। मतलब मैं कहता था कि हम रोज रात को पाकिस्तान ठीक करके सोते हैं और सुबह उठ के पाकिस्तान खराब हो जाता है। आई एम श्योर यू डन दैट एक्सरसाइज, एंड आई एम श्योर आज भी कर रहे होंगे, बिकॉज आपका पैशन है ये। आई आई कैन अप्रिशिएट दैट, सबका पैशन है। बताइए, टॉप आपकी पांच छह चीजें क्या होंगी जो आप करना चाहेंगे, सपोजिंग यू वर गिवन द कार्ट ब्लांश, कि जी टॉप पांच छह चीजें आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि वाई पाकिस्तान हैज फेल्ड, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये ना कि वाई वाई वी हैव फेल्ड। मेरे मेरे नजदीक कि पाकिस्तान ने वो जिन कंट्रीज की मैं एग्जांपल दे रहा था, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम वगैरह की, इंडिया की भी बहुत हद तक, बट इंडिया उस लेवल पर नहीं है, बिकॉज इंडिया बल्लेबाजी भी बहुत करता है, मतलब हमारे साथ ही कर ले लें अगर। बट कंट्रीज का एक बड़ा सिंपल पैरामीटर होता है आगे जाने का, और वो इतना सिंपल है जैसे आप अपने घर में फैसले करें कि व्हाट इंश्योर्स अ गुड फ्यूचर फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये है ना बेसिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो व्हाई इज इट डिफरेंट फॉर अ कंट्री, व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंट्री, कि उसमें आप ये कहें कि नहीं, देयर इज नो रिलेशनशिप। जो हमारे फैसले हैं वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, as if there is, we have recognized there is no relationship between education and economic prosperity। That's why we spend so low, that's why our literacy rate is so low, that is why we have so many people, kids out of school, that is why 40% of the kids below 5 are stunted,
इस वजह ना इज अ रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी आप कल को चेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट में जाके आप बजट पास करें, अपनी तरजीहात को चेंज कर दें। तो मेरे नजदीक जो आप सोसाइटी को पहले फिक्स करते हैं, एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। सो यू फिक्स योर एजुकेशन, यू फिक्स योर हेल्थ केयर सिस्टम, यू फिक्स योर थाना कचहरी सिस्टम, ताकि एक आम पाकिस्तानी को वो इंसाफ मिले जो उसको नहीं मिल रहा, जो सब रिकग्नाइज करते हैं। और फिर हायर लेवल पर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की तरह से साफ पीने का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, बिजली होना, गैस होना। मतलब आप एक सोसाइटी बना दें, कराची की मैं बात करूं कि आपने करोड़ों लोग का इजाफा हो गया और आपने ऐसे ऐसे जगह हैं जहां आपने ना गैस मुहैया की, ना बिजली मुहैया की, ना पानी का सोचा। सो एंड दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर इनकॉम्पिटेंस। और इनकॉम्पिटेंस कम्स बिकॉज यू आर नॉट एजुकेटेड पीपल। हम बार बार बहस करते हैं। आज भी ये कोई, मैं पढ़ रहा था एक कंपैरिजन कि इजराइल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, सबसे बड़ा फर्क इज एजुकेशन। वो कितने पीएचडी पहले करते हैं, हम 57 मुस्लिम कंट्रीज कितने पीएचडी है, उनके यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज है, हमारे यहाँ सारी मिला के कितनी यूनिवर्सिटीज है। और हम तो सहारा ले रहे हैं 57 कंट्रीज का। पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। हाउ मेनी पीएचडीज वी हैव प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, हाउ मेनी ऑफ आवर पीपल हैव गॉट नोबेल पीस प्राइज, व्हिच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एजुकेशन। वो डॉक्टर सलाम को मिली थी, उनको भी ऐसे ट्रीट किया गया कि जैसे हम शर्माते हैं कि उनको मिला क्यों था नोबेल पीस प्राइज। तो एजुकेशन के लिए वैसे तो एक आध और भी मिला है हमारी बेटी में, बट दैट वाज फॉर ऑब्वियसली फॉर समथिंग एल्स। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, आप सोसाइटी नदीम जब तक आप ये फिक्स नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, गिव मी 2 मिनट्स सो, हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हम अपनी जियो पॉलिटिक्स को अपने लिए बेहतर ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हमारी जबरदस्त सिचुएशन हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कंसिस्टेंटली वी डन ड्यूरिंग द यूकांस टाइम, वी बिकेम मेंबर ऑफ सीटो एंड सेंटो। और हमने बजाय कि हम तालीम की तरफ वो करते, बजाय कि हम अपने टैक्स के निज़ाम को ठीक करते, बजाय कि हम एनर्जी के निज़ाम को ठीक करते, बजाय कि अपने हेल्थ को निज़ाम को ठीक, हम समझे कि हम सीटों और सेंटों के मेंबर वहां बन जाएंगे, वहां से लोन भी आए, झुके आए, दबा के आए। और हम हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म, हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो गया 6% हो गया और फिजिकल डेफिसिट 4% हो गया, एंड दैट इज अ स्टोरी। भाई वो जो how on how on earth can you have a future with poorest level of education, with such a massive illiteracy, with such a poor health system, with a almost rotten tax system, with a rotten energy system? फिर जियाद के जमाने में हमने ये समझा पोस्ट 79 जो सोवियत ऑक्यूपेशन हुआ, फ्रंटलाइन स्टेट बन के अमेरिका से इमदाद आ जाएगी, हमने कहा जी तरक्की का बड़ी जबरदस्त तरक्की होनी शुरू होगी। फिर मुशर्रफ के जमाने में यही सोचा। एट द एंड ऑफ द डे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वुड इट नॉट हैव बीन बेटर इफ वी वर स्पेंडिंग एंड फोकसिंग ऑन आवर इंटरनल। अभी भी एक फील्ड मार्शल साहब के हवाले से एक जो उनकी मीटिंग हुई वहाँ ट्रंप के साथ, बड़ी अच्छी चीज है। बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपने जियो पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी पर फोकस नहीं करना चाहिए, बट अगर हम समझे उससे पाकिस्तान इंप्रूव हो जाएगा तो उससे पाकिस्तान नहीं इंप्रूव होगा। सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो एंड यू एब्सोल्युटली राइट। इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आप अपने घर में करते हैं, अपना आप घर अपने ठीक घर करें। में करते हैं कि भाई आप कहते हैं कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप चारों को जबरदस्त एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं। पर मुझे बताइए क्या वजह है कि हमारे यहाँ एजुकेशन ठीक हो? एवरीबडी सेज, मेरा ख्याल ये अक्रॉस द तो बोर्ड अगर एवरीवन आप डज चले जाएं पूरा पार्लियामेंट कहता है एजुकेशन ठीक करनी चाहिए, नो, दे डोंट से दैट नदीम, लेट मी पुट इट। बल्कि हर कोई कहता है मेरे जिले में यूनिवर्सिटी बनाओ। सर मैं आपको ब्लंटली एक चीज है, देखे ना, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस। एवरीथिंग, जितना आप क्रिकेट टीम में 11 होते हैं ना प्लेयर्स, तो आप कहते हैं यार उसको भी ले, बाबर आजम भी होता, फलाना भी होता, तो फिर आप जो सही क्वेश्चन होता है किसके बदले होता। तो एजुकेशन होगी, एजुकेशन पर स्पेंडिंग होगी, फोकस होगी, किसके बदले होगी, बजट तो वही है। अच्छा ये जो हमारे ज्यादातर लोग उसका जवाब देते यार अगर करप्शन ना हो तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। भाई जब होगा करप्शन भी खत्म उस वक्त होगी जब यू हैव मोर कॉम्पिटेंट पीपल इन अथॉरिटी। भाई एक बैंक है, बैंक कैसे उसका निजाम चलता है, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट लोग है ना, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निजाम चल रहा है, एक पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग चला रहे हैं। अगर वही आप सारे
तहज्जुदी भी डाल देंगे तो पहले दिन बैंक में डाका पड़ जाएगा, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रन द सिस्टम। तो ये जो कहते हैं ना कि मैंने सवाल पूछा है काबीना के मेंबर्स से भी और बहुत से दूसरे लोगों, यार वुड टेल मी, हमें एजुकेशन, हाँ जी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन का बजट अभी ना बढ़ाएं क्या? अभी तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आई मीन दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, No, बिकॉज but ये डिपेंड ऑन द I'll go in a different मैं direction. आपको Zubair एक साहब, I'll एग्जांपल, go in a different direction. अच्छा मैं I'll एक go in a different एग्जांपल direction. देता हूँ, एक I एग्जांपल think, देता हूँ। I अच्छा think बताइए। quite, जी सॉरी, I'll go in slightly different direction. देखिए हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैंने इस पे बड़ी तहकीक की है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर अगर हम मैं इंटरनेशनल टर्म यूज़ करूँ तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। आपने इसराइल की बड़ी अच्छी बात की, किताब थी इस द स्टार्टअप नेशन इसराइल के बारे में, उसने यही बताया है। और कल नेतन्याहू ने भी तकरीर में कहा है कि इसराइल से थर्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, नॉट इन परसेंटेज टर्म्स, कि इसराइल में अमेरिका के बाद, अब दूसरा मुझे मुल्क भूल गया, तीसरी लार्जेस्ट कंट्री इन्वेस्टमेंट आती है इन एब्सोल्यूट टर्म, डॉलर टर्म्स। फिर उसने ये भी कहा कि भाई तुम सेलफोन लेते हो इसमें इसराइल है, तुम बिजली लेते हो इसमें, हर चीज़ में इसराइल है, क्योंकि उनके पेटेंट्स अब दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सारी इसराइल के हाथों में है, क्योंकि इसराइल द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएचडीज पर कैपिटा। पर हमने तो पीएचडीज को, अताउर रहमान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ पीएचडीज धनों की तरह बिक रहे हैं और जो पीएचडीज आते हैं वो किसी काम के लायक नहीं है। अब वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में नौकरी लेके बैठ जाते हैं और फिर निकलते नहीं बाहर। वो उनको टेन्योर मिल जाता है, उनको निकालने की कोशिश करो तो जज साहब कहते हैं इनको नहीं निकाल सकते भाई, ये टेन्योर है, अब ये बैठे हुए सारा जिंदगी बैठे रहेंगे। फिर वो घर बना लेते हैं। तो मैंने दो पेपर्स किए थे, एक किया था कि जी हमारे पास प्रोफेसरलेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि दीज यूनिवर्सिटीज़, कई यूनिवर्सिटी के पास एक प्रोफेसर भी नहीं, कई के पास दो प्रोफेसर हैं, वो पार्ट टाइम पढ़ाने वाले बहुत हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी जाके पार्ट टाइम पढ़ाते थे हर जगह। अब ये तो एक ट्रेजिडी है ना। और जो लर्निंग का माहौल है, वो परवेज हुदबा भी लिखता रहता है, लर्निंग का माहौल कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं। पर इसके साथ अगर आप देखें तो वाइस चांसलर हम दानों की तरह लगाते हैं। आपको पता है अभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद वाइस चांसलर इंटरव्यू करके बनाया। वाइस चांसलर पॉलिटिक्स पे लगते हैं, प्रोफेसर आप लगा नहीं सकते। अगर कोई अच्छा बंदा लग जाए आप उसको निकाल देते हैं, आप उससे नाराज हो जाते हैं, अरेस्ट भी कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास पैसे के अलावा एजुकेशन का माहौल है कि नहीं? डू वी हैव एन, फॉर एग्जाम्पल मेरा तो कहना यह है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को अबॉलिश करें और लोकलाइज करें, एजुकेशन को छोड़ दे, एचईसी को अबॉलिश करें, सब चीज़ लोकल होनी चाहिए। और छोड़ दें ये बड़ी बड़ी बातें कि इस्लामाबाद चलाएगा या लाहौर चलाएगा या कराची चलाएगा। क्या ख्याल है आपका? देखिए एक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है माहौल, और माहौल आता है एक एक घर का, अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, उसमें जब बच्चे बड़े होते हैं हम्म, तो उनको महसूस हो जाता है कि हमारे घर का माहौल एजुकेशन का है और बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने मैट्रिक नहीं करना, मैंने बीए नहीं करना, मैंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल करनी, उसको शुरू से माहौल एक एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज दे आर हम्म, टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन एजुकेशन। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को भी जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यार फॉर वंस गो एंड टॉक अबाउट द कॉमन, फॉर वंस टॉक अबाउट थिंग्स कि जी पुल को छोड़ दें, अंडर पासिस को छोड़ दें, रोड्स को छोड़ दें, जरूर बनाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो बात करें जो हम जो हमारे फेलियर्स है, कि मेरा जो फोकस होगा, एंड दैट स्टार्ट्स व्हाई दे डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज दैट स्टार्ट्स विद द कॉमन मासेस, कि उनकी आप बात कर रहे हैं जो 78 साल से हमारी तरफ देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमारे लिए कब बात होगी, हमारे लिए कब बार बार कहा जाएगा कि जी हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन। मैं उस मुरीद के में या जामशोरों में या दादू में वो जो बैठा हुआ है आज तक इंतजार कर रहा है, जो ना वो स्कूल गया था, ना उसका बच्चा स्कूल गया था, ना उसका बच्चा स्कूल गया और ना आइंदा आने वाला उसमें जाएगा। हम्म, हाउ मेनी टाइम्स डू वी इवन सी अ लीडरशिप टॉकिंग अबाउट इट? तो माहौल तो बनता है जब पूरे उससे बनते हैं। ये वैसे ही है, देखिए जब हम क्रिकेट में चले, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट क्रिकेट के लिए हम अच्छे हैं, बट कंपेयर टू से सॉफ्ट बॉल और कंपेयर टू से स्विमिंग हम क्यों ज्यादा अच्छे हैं? वर्ल्ड में टॉप 10 में तो है ना। द रीजन इज पेशावर से लेके कराची तक हर मोहल्ले हर गली में शाम को आप देखेंगे क्रिकेट हो रही है, उसमें से आपने पिक करना होता है। तो आपका जो पूल है वो इतना बड़ा होता है, तो जब आपका एजुकेटेड पूल इतना ज्यादा होगा तो उसमें से, तो आपने एग्जांपल दी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं,
तो ना उस उधर कोई लेवल है, और सबसे ज्यादा आउट स्कूल चिल्ड्रन भी साथ में पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट है। सो हमारे तो किसी लेवल पर भी, ना मिड लेवल पर, ना स्टार्टिंग लेवल पर, ना फिनिशिंग लेवल पर, कहीं भी। जुबैर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि घर के माहौल से बनता है। एक मतलब घर बच्चा देखे घर में लोग पढ़ रहे हैं, किताबें भी लगी हुई हैं, सब कुछ। बल्कि बड़ी रिसर्च इस पे मुझे याद है, बल्कि हार्वर्ड में एक बंदा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इंडियन ही है, उसने, राज शाह, उसने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। उसने कहा है कि भाई, और मेरा प्रोफेसर भी गैरी बेकर, वो यही कहता था कि भाई, आपके पेरेंटल एजुकेशन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और बहुत इस पे रिसर्च है। अब हमारे यहाँ देखिए, मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ। क्या कैबिनेट या हुकूमत में कोई लर्निंग है? मैं इसको इस चीज़ से जोड़ता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि फ्लड आया है। फ्लड हर साल आता है, और ये तो नहीं कि वो नया आया है। फ्लड आपको पता है हर साल आता है, कभी बड़ा कभी छोटा, पर आता है। और आपको पता है कि रिएक्शन भी डिफरेंट होते हैं। सिंध में खुशी मनाई जाती है, हम पंजाब में रोते हैं। तो ये भी एक अजीब किस्म की चीज़ है, बट खैर, इट हैज़ कंटेंट इन इट। अब मसला ये, फ्लड पे मैं देखता हूँ हमारी क्या सोच है। हम कहते हैं कालाबाग डैम बना दो, बगैर सोचे कालाबाग डैम बना दो। हमारे पास जो इंडस वाटर्स का जो कमिश्नर है, वो एक जॉइंट सेक्रेटरी है, ठीक है। हमारे पास पानी का निज़ाम क्या है, कुछ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी गवर्नमेंट में नीचे बैठी हुई हैं। आप कैबिनेट में रहे, मुझे बताएं, कैबिनेट में कभी हमने पानी पर प्रॉपर मीटिंग की है, कंसेप्चुअल विद वाटर प्लान? नॉट जस्ट कि हम कालाबाग डैम के अनाउंस कर देंगे, वो नहीं होता। इसी तरह मैं देखता हूँ एनर्जी का प्रॉब्लम है। अब एनर्जी का प्रॉब्लम, हमने कभी उस पर तहकीक नहीं की, कभी बैठ के नहीं कहा ये प्रॉब्लम क्या है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने कभी अपनी यूनिवर्सिटी से सवाल नहीं पूछा। अगर हम सवाल पूछते हैं तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी, उन लोगों से पूछते हैं। हम ये नहीं कहते भाई अच्छा आईबीए को कहो ये कुछ पर तहकीक करे, अच्छा उधर कहो पेशावर यूनिवर्सिटी को तहकीक करे। आफ्टर ऑल, मैं जब फिल्म ओपेनहाइमर देखता हूँ, तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से बम बनवाया था, हमने भी अपने लोगों से बम बनवाया। तो हम अपनी यूनिवर्सिटी से सवाल क्यों नहीं पूछते ये वाले? और हम उनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट में क्यों नहीं लेके जाते? व्हाई इज द कैबिनेट डिस्कसिंग एडीबी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स, नॉट अ यूनिवर्सिटी रिपोर्ट्स? देखिए, उसमें एक तो मैं आपको पता नहीं, ये इस किस्म की बात करने से कुछ ऐसे एरोगेंस सी लगती है थोड़ा सा। जी। देखो, आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रही हम्म, हैं। हम्म, हम्म, हमारी जो काबीना है, या हमारी जो पॉलिटिकल का निजाम है, वो डिजास्टर टू डिजास्टर चलता है। फ्लड आ गए तो बात करनी शुरू कर दी क्लाइमेट चेंज, और बारिशें बहुत हो गई, और देखें इस दफा एक कमेटी बना दी है, ऐसे भी बात को हेड करेंगे, और वो अगले साल जो फ्लड्स आएंगे उसका रोकने के लिए और उसकी मुनासबत से एक तहकीक करेंगे। एज सून एज द फ्लड थिंग इज ओवर, समथिंग एल्स, बिजली के बिल ज्यादा आ जाएंगे, तो एक फिर मीटिंग उस पर हो रही होगी, और फिर ये कहेंगे कि जी बिजली का, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, और फिर टैक्स हम्म, का जब थोड़ा सा प्रेशर आएगा टैक्स। सो वी वर्क डिजास्टर टू डिजास्टर, जिसको कहते हैं ना पीस टाइम में बैठ के इंटेलेक्चुअल डिबेट, आप उन लोगों को शामिल करें जो कि इनपुट दे सकें, उन लोगों की बात सुने जो कि आपको वो चीजें बता सकें कि जी एक तो लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी नतीजा इसमें ये होता है, ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसमें सर्वाइवल की जंग हो रही है। जैसे आप कहते हैं ना कि आईएमएफ का आपका जो प्रोग्राम है, उसमें सर्वाइवल की जंग है ना, कि आईएमएफ ने आपको हम्म, लोन देना है, हम्म, आपके ये एग्रीमेंट हुआ है कि आप हम्म, प्राइवेटाइजेशन में ये करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में ये करेंगे, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स करेंगे, टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म्स करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो, और हर क्वार्टर का वो एक रिव्यू होता है। सो वो क्वार्टरली रिव्यू चैलेंज देते हैं, बस उसके अलावा आपने ये नहीं कि ये आईएमएफ की अगर तलवार ना हो, तो खुद से क्यों नहीं ये चीजें डिबेट हो सकती कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनीज की परफॉर्मेंस इतनी खराब है, हमने आईएमएफ की रिपोर्ट देने के लिए भी उसको ठीक करना है, या उसके नंबर्स को अच्छा शो करना, यदि पीआईए की प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, या पाकिस्तान स्टील मिल के लॉसेस इस दफा कम है पिछली दफा के मुकाबले में। सो मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं माहौल कि जिसमें बैठ के, क्योंकि चॉइसेस आप एक, हालांकि हमारे हर हुकूमत में तकरीबन, चाहे वो पीएमएल की थी, पीपल्स पार्टी की थी, हम टेक्नोक्रेट्स को लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है हम्म, टेक्नोक्रेट्स को नहीं लेके आते, बिल्कुल टेक्नोक्रेट्स लेके को आते लेके आते हैं। हैं, लेकिन उस उनके पास इतनी लिमिटेड स्पेस होती है हम्म, टू कम अप विद आइडियाज। वो कहते हैं जी आपको जो काम दिया हुआ है, अभी जिस तरह अगर आप मुझे हम्म, कह रहे हैं कि हम्म, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, तो हम्म, भाई अभी आप ये जो आपने तीन प्राइवेटाइज कर दी उसका क्या हुआ, ये मुझे छोड़ देना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को कैसे ठीक करना है या क्या करना है, हम्म, रिस्ट्रक्चरिंग से होना है, प्राइवेटाइजेशन से होना है, या क्या नहीं होना है। हम्म, तो आई थिंक अगेन पॉइंट ये ना कि हम्म, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस भी चलता रहे, हम्म, और इस हम्म, तरह से चलता रहे कि जिसमें कोई डर खौफ ये ना हो कि कम व्हाट में हम्म, वी हैव टू सर्वाइव इन द गवर्नमेंट,
फिर उसके लिए आप इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं देखते, फिर आप सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं कि जी मैं किसी को खुश कर दूं तो उससे मैं सर्वाइव कर जाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे। और अब तो अकाउंटेबिलिटी का भी वो तलवार हट गई है कि जी आप कि जी मैंने कोई डिलीवर नहीं किया तो फिर अवाम क्या कहेंगे एंड सो ऑन सो दैट इज नो मोर अ डिबेट because they know the system will work not on the basis of what people think but rather on the good wishes of certain quarters. हम्म, हम्म। पर ये बताइए कि ये जो है, चले एक और तरफ चलते हैं। मुझे बताइए, इस पाकिस्तान अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? Yes, I mean it's definitely not a socialist economy. I mean if we have to choose between the two, it is not a communist economy. It is not socialist. Somewhat it's जिसको आप लोग इकोनॉमिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो शो एक रिगोनॉमिक्स है जिसमें बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही बिल्कुल एक्सट्रीम है, या थैचरिज्म जिसको आप कहते हैं कि स्टेट का कंट्रोल ही ना कुछ हो, स्टेट इन्वॉल्व ही ना हो, कि सिस्टम विल बी सच कि वो सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम होगा। और एक आजकल की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अमेरिका की जिसमें जाहिर है उनका इतना अमल दखल है हुकूमत का। इनफैक्ट आज मैं पढ़ रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं जो एक रिक्वायरमेंट है उधर यूएस में, उसको खत्म करके 6 मंथ में, तो ये स्टेट इंटरवेंशन ही हो गया ना। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को फारिग करने का भी एक आप एक दिस इज डेफिनेटली नॉट अ कैपिटलिस्ट वे ऑफ वर्किंग। तो वो जो ये रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी वाज नोन नॉट टू बी डूइंग इंटरफेयरिंग टू मच। तो पाकिस्तान में जितना मेरे हिसाब से 1980 से भी अगर तरक्की कहीं हुई है तो प्राइवेट सेक्टर में तरक्की हुई है। अगर तरक्की नहीं हुई है या खराब से खराब तर हुआ है तो वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, चाहे वो रेलवे ले लें, चाहे आप एयरलाइन ले लें, चाहे आप कोई और ले लें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ले लें। So not a capitalist economy, but the state has a lot of. But then let me ask you कि prices are fixed by bureaucrats, ठीक है? बिजली की कीमत फिक्स करते हैं वो लोग, और आटे दाल की कीमत वो फिक्स करते हैं, बल्कि उंगली उठा के प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहबा या चीफ मिनिस्टर साहब उनको कहते हैं भाई जाके दुकानों में चेक करो, प्राइस नहीं चढ़नी चाहिए। क्या ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का निज़ाम है या ये उसका कोई अजीब किस्म की कॉलोनियल इकोनॉमी का डिजाइन आप है? उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिनको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का डिफरेंस भी नहीं पता होगा कि ये उनका मैंडेट है क्या। प्राइसेस को रिव्यू करना और अवेयरनेस होना और इंश्योर करना मैनिपुलेशन या ये सारी चीजें एक चीज है जैसे ईसीसी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। आई डोंट नो टुडे बट जिस वक्त मैं था तो उस वक्त हर महीने में एक दफा, बिकॉज द मीटिंग कुड बी ट्वाइस और थ्राइस, बट महीने में एक दफा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो था वो प्रेजेंट करता था हर मेजर राइज की, और उसमें दो तीन चीजें होती थी। एक अवेलेबिलिटी मतलब सरप्लस है या शॉर्टेज है, क्या कीमतें, जस्ट बिकॉज आपने जाहिर सी बात है वो सीपीआई और एसपीआई के नंबर्स भी बताने हैं, तो अवेयरनेस तो होना जरूरी है। अब उस अवेयरनेस और फैसले साजी करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त ये था कि आगे 3 महीने का कंजम्पशन कितनी होनी है, अवेलेबिलिटी कितनी, प्रोडक्शन कितनी होनी है या जो भी है, और 3 महीने के बाद की सिचुएशन क्या होगी, ताकि आज आप फैसला कर सकें कि चीनी आपने इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ आपने रिसेंटली देखा होगा कि जी वो आपने उस वक्त वीट एक्सपोर्ट कर दी जब दैट लेड टू शॉर्टेज, और फिर बाद अच्छा, में दूसरी साइड पे ये भी देखिए, यू आर द इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, मुझे बताइए कि खुदा के वास्ते, वी हैव एन SIFC, वी हैव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव प्लानिंग कमीशन, ये सारे इदारों में कोई डिफरेंस है? बहुत सारे एक सारे काम नहीं कर रहे। नंबर दो, मुझे बताइए, जो हमने हिसाब लगाया है, हमने एक 3 वॉल्यूम सेट निकाला था, उस पर और भी बड़ा करना था, जिसका नाम था स्लज। हमने कहा जी रेगुलेशन का कॉस्ट क्या है, तो मैंने बच्चों को भेजा, मैंने कहा तुम जाके करो। कोई बच्चा भेजा का पूछो स्कूल कैसे खुलेगा, कोई बच्चे को भेजा पूछो दुकान कैसे खुलेगी, कोई बच्चे को भेजा। हमने सारों को क्वांटिफाई किया, ठीक है जी। हमने कोई 50 एक्टिविटीज की थी, तो हमारा ऑलरेडी GDP से 50% नुकसान ज़्यादा चला गया था, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर हम फुल करें तो हमारा तो कुछ 600-700% GDP का सिर्फ इसी काम में लगा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन। कि हम NOC जो किसी दुनिया में नहीं है, क्लियर होते हैं रूल्स,
एनओसी नहीं होता। आप कितनी दुनिया में काम कर चुके हैं, आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि क्या है और आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, हो जाता है। यहाँ एनओसी 10-10, 15-15 एजेंसी से लेना है, मिनिस्टरों के दफ्तर के बाहर बैठना है, ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तर के बाहर बैठना है। क्या ये भी फिर इन्वेस्टमेंट, हम रोते हैं कि इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो इज नाउ 13%। अब 13% तो जुबैर साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना होने के बराबर है। इसे तो मतलब कह दे नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने ये करना है, बाबुओं के हाथ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन रखनी है और वो आपको बताएंगे कि कहाँ बिल्डिंग बनेगी, कहाँ दुकान लगेगी, कहाँ घर बनेगा, तो फिर तो यार मुल्क नहीं चल सकते। और कीमतें उनके हाथ में रखनी है तो क्या करें? चल भी नहीं रहा ना, चल हाँ भी जी। नहीं रहा, हाँ। चल भी नहीं रहा। देखिए आपने जो एसआईएफसी की बात की ना, अगेन आप जो पहला सवाल था उस वक्त मैं एसआईएफसी को थोड़ा सा मेरे जहन में नहीं आ रहा था, बट इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, उस पर बैठेंगे और उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी बैठेगी, और मिलिट्री लीडरशिप का, हम मैं पॉलिटिकल साइड पर नहीं जा रहा बट इकोनॉमिक साइड की बात कर रहा हूँ। अगर मिलिट्री लीडरशिप को बैठना ही पड़ गया है, फैसला साजी में, और उनका बहुत क्या उन्हीं का सबसे ज्यादा रोल है, तो फिर वो बाकी हमारा सिस्टम फिर कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता। तो वहां आप हर चीज वहां सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि जी चकवाल में पुल कहाँ बनेगा, और ये वाली फैक्ट्री दादू में लगेगी या लैया में लगेगी, सारे फैसले वहां हो रहे हैं ना, और वहां हो ही नहीं सकते। और फिर डाउन द लाइन आप जब ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर वहां पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल जो वो उनका लाहौर है, वहां चीफ मिनिस्टर या सीनियर मिनिस्टर बैठ के फैसले करेंगी, तो ऑब्वियसली वी कांट कॉल इट अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। बिल्कुल ही एक सोशलिस्ट मॉडल है, बट without the inherent understanding that we are moving towards that system। ठीक है ना? या तो ये हो ना कि एहसास हो कि we have chosen this system as a preferential system, that we believe that the markets cannot operate on their own and we need to interfere and manage those markets। चाहे वो इवन करेंसी मार्केट्स को देखते ना, अगर आजकल आप करेंसी मार्केट को देखो तो इट इज मैनेज ना। अब वो एक जमाने में इसाक डार को भी कहते थे, ब्लेम करते थे कि जी वो रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। सो हुकूमत पाकिस्तान फैसला ये करती है कि रुपए को या दालों की प्राइसेस को या चीनी की प्राइसेस को क्या रखना है। तो जाहिर सी बात है वो आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। फाइनली ओवर अ पीरियड ऑफ पर टाइम। जुबैर साहब, आप IBM में काम करते थे, ठीक है? वो आपके भी, मेरे भी बड़े दोस्त हैं जो सिलिकॉन वैली में है, सिटी बैंक में है, वगैरह वगैरह। आपको पता है पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे जगह पे लगे हुए हैं और वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। हम उनको वापस नहीं बुलाते हैं, चलो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। तो मैंने एक दो पाकिस्तानियों से पूछा जो बैठे हुए थे सिलिकॉन वैली में, माशाल्लाह अब डॉलर बिलियनर्स भी बन गए हैं, बड़ा अच्छा उनके पास सब कुछ है। मैं वॉशिंगटन में होता था, मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा भाई वॉशिंगटन कब आओगे? तो वो हंसते थे, क्या करने आएंगे? मैंने कहा यार तुमने हुकूमत से नहीं मिलना। तो वो कहते थे भाई हुकूमत से क्यों मिलना है, ठीक है? वो कभी नहीं हुकूमत से मिलने आया। बिल गेट्स नहीं आता, बिल गेट्स आता है अपना एजेंडे के लिए। स्टीव जॉब्स को बुलाया था, स्टीव जॉब ने कह दिया भाई मैं नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? आप मुझे बताइए, जब आप IBM में थे, आपके जो जो भी आपके पॉलिसी में का, कितनी दफ़ा वॉशिंगटन गए, कितनी दफ़ा परमिशन लेने के लिए गए, ठीक है ना? मेरा ख्याल है होता ही है, कभी नहीं है IBM अपने। काफी जगह वहां मैंने काम किया। हाँ। आईबीएम हाँ। इटली में मैं था, हाँ। फ्रांस में भी था, हाँ। जोहानिसबर्ग भी था, तो और आप कभी हुकूमत से मिलते थे, कभी कभी बातें? भी नहीं, फिर? कभी भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर जब एक डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप के लिए ठीक। यू आर सेलिंग कंप्यूटर्स, हाँ। और इफ देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट हैज नॉट गॉन वेल विद द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल सब उनकी फौज है, उनकी एयरफोर्स परमिशन है। लेने तो नहीं जाते थे ना? नहीं, परमिशन यहाँ से, जिस तरह कराची से सुबह 7 बजे की फ्लाइट अगर आप लेना नदीम, तो आपको वो 7 बजे की फ्लाइट में who's who ऑफ पाकिस्तान सारा बिजनेस, FPC मिल जाएगा, सारा सारा FPC। सारा। अच्छा अब आप खुद बताएं एक चीज, और ये उस वक्त की बात होती थी, पॉलिसी बनाने वाले बैठे हुए हैं, बिजनेस पॉलिसी बनाने वाले बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और उसको चलाना किसने, उसको चलाना है कराची में फॉर एग्जाम्पल या लाहौर में। अब टोटल डिस्कनेक्ट है, टोटल डिस्कनेक्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वो कोई और पॉलिसी है। मतलब एक दफा एक मीटिंग हो रही थी जिसमें होटल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही थी, और बाबू बैठे थे और पॉलिटिकल क्लास बैठी थी, और वो कह रहे थे कि जी देखे ऐसे करें। तो मैंने कहा कि यहाँ हाशवानी या वारी को होना चाहिए, दे नो व्हाट द बिजनेस इज लाइक, और फैसले हम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम फैसला कर लेंगे, पॉलिसी बना लेंगे, तो जब उनको बताएंगे तो वो कहेंगे यार ये फिर वो मीटिंग करने आ रहे हैं।
जैसे होते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास वो भागते जा रहे हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान, देखें एक चीज नदीम, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने जिन जगहों की एग्जांपल दी थी ना, वो बहुत सिंपल एक वो है, लाइफ है। आपने देखा है कि वहाँ यूरोपियंस खास तौर पर यूएस के मुकाबले वेरी सिंपल, और कैबिनेट मिनिस्टर भी गुजर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता चलता। तो एक तो वो समझ की अगर ये हमारे अंदर, सब मुसलमानों के अंदर एक पावर का एक वो है, तो मजा फिर कैसे आएगा? अगर आरिफ हफीज और रफीक डैडी से आपको रोजना चक्कर काट रहे हैं, तो फिर वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर होने का फायदा क्या है? तो ये हमारी जो एक एक वो मैकेनिज्म है ना, जब वी ऑपरेट, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जब मैं गवर्नर बना था, तो उसका एक लार्जली एक रीजन था, बिकॉज आई, नवाज शरीफ को भी पता था मेरा बिजनेस में, हमेशा बिजनेसमैन के फेवर में बात करता था। तो इनफैक्ट एक बार शायद खान अब्बासी ने मेरे से पूछा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक तरफ बिजनेसमैन बैठे थे, जब हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने आधे घंटे बाद मेरे से पूछा, आप किसकी तरफ हैं? मैंने कहा मैं तो बिजनेसमैन के साथ हूं, Of course. बिकॉज दे नो। भाई उनकी बात सुने, कह रहे उस वक्त भाई आप हमारी खिंचाई कर रहे। तो मैंने ये कहा था कि जी देखिए, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, कराची में सारे मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं, तकरीबन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट यहाँ है, कॉटन एक्सचेंज यहाँ है, सेंट्रल बैंक यहाँ है, तो और सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स यहाँ हैं। सो जो गवर्नर है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। We should create an office for the businessman, which can be used as a conduit between the federal government and the business community, ताकि उनको वो सुबह 7 बजे की हर रोज फ्लाइट ना पकड़नी, ताकि एटलीस्ट 50% थिंग्स यू कैन टेक इट अप, और आपके पास ये एबिलिटी है टू कनेक्ट देम विद द रेलेवेंट पर्सन, प्राइम मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या जो वो। सो दैट वाज वन मेजर आइडिया कि किस तरह से आते हैं, और फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, लेकिन वो फिर उसके बाद चला नहीं। पर देखिए, ये भी तो एक चीज है ना, आप सोचिए जरा, मे बी गिव मी योर थॉट्स ऑन बट दिस। ये मैं आपको बता दूं, जो आपने सवाल पूछे, कभी भी इन ऑल दोस many many years, more than a decade or maybe half decade and a half that I was, कभी किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाते थे, कभी इस चीज में खुशी नहीं महसूस करते थे कि जी वो आ रहे हैं, उनका कोर कमांडर आ रहा है तो सारे मिलने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कभी, मतलब देयर वाज नो कनेक्शन भाई, बिजनेस In fact, you never even thought about it. You never even felt it. कर। अच्छा, ये बताइए कि क्या तरक्की तब नहीं होगी अगर के आप जैसे लोग, मिफ्ता जैसे लोग, और या असद उमर जैसे लोग, आप लोग सारे प्रेफर करें मेयर ऑफ कराची लगना टू सेंट्रल मिनिस्टर? क्योंकि देखिए, अभी अमेरिका में वो हो रही है इलेक्शन बम्बानी मेयर की, हम सब उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, फार मोर इंपॉर्टेंट देन मेनी फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह। This question is लंदन के मेयर Hadir Khan, बिल्कुल. This question is directed toward local government and attracting talent in local government. What do you think? अच्छा, पहले तो मैं असद को और मिफ्ता को आपका मैसेज उनको भी मैं पकड़ लूंगा, डोंट वरी। बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि कहाँ आप ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, कहाँ आप डिलीवर कर सकते हैं। द लेवल, कराची इज ऑब्वियसली humongous city with so many challenges के मतलब आप लोग तो पंजाब में बैठे थे ना, तो आपको पता ही नहीं कि पंजाब से बाहर पाकिस्तान जो है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। कराची इज जस्ट अबाउट, वो मुझे कोई इस्लामाबाद में कुछ सेमिनार में मैं बात कर रहा था, और मैं कराची कराची कर रहा था, तो किसी एमएन ने मुझे कहा कि आप तो अल्ताफ हुसैन की तरह बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बातें, मैं उनकी तरह हरकतें नहीं करूंगा, उनके तरीकेकार से मुझे शदीद इख्तिलाफ है, बट टू रेज द इश्यूज अबाउट कराची, बिकॉज पाकिस्तान की तरक्की अगर होनी है तो कराची से जुड़ी हुई है, तरक्की सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, और कराची अगर इनफेक्टिव होगा, इफ कराची इज द 4th worst livable city in the world, in terms of economic growth in the country. Look at the first 40 years of Pakistan's history, when Pakistan had done pretty well, and Karachi's role in that, वो किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, किस तरह से
business growth hui and so on and so forth. And the problems of Pakistan started when Karachi started going down. Not the only reason, but Karachi was largely contributing to the mess that Pakistan 90s में जिस तरह से हालात है, ज़ाहिर है बिजनेस ही नहीं हो रहा, लोग भाग रहे हैं, शटर डाउन हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर कौन यहाँ बिजनेस करने की बात करेगा? तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया जो आपने कहा है कि मेयर कराची। अब देखिए ना जुबैर साहब, अगर मैं देखूं तो अमेरिका में जब मैं वहाँ था, ऑल्दो आई एम एन इकोनॉमिस्ट, नॉट कंसर्न्ड एट ऑल, पर मुझे पता है लू गर्सनर का नाम, मुझे पता है जॉन रीड का नाम, मुझे पता है ये जो जायंट्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, या मेयर ऑफ न्यूयॉर्क का नाम, मतलब ये जायंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और जायंट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो हम लोकल गवर्नमेंट लाएं तो असल तो तरक्की वहाँ होगी। बट अब मैं एक तरफ और जाना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, What do you think of the policy making process in the government? क्या ये जो पुरानी सिविल सर्विस है ये ठीक चल रही है, इसी निज़ाम को चलना चाहिए? नंबर 2, क्या ईसीसी रहनी चाहिए? क्या ईसीसी अपना काम ठीक कर रही है? क्या कैबिनेट सब कमिटीज ठीक है? इज देयर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज? हाउ डू द मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट? इज द पार्लियामेंट इफेक्टिव? और इज देयर किचन, जो हमें फीलिंग होती है किचन कैबिनेट, द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे पीटीआई हो चाहे वो, किचन कैबिनेट सब डिसाइड करता है। क्या ख्याल है आपका? एक देखिए, ये आपका सवाल, एक तो पहले मैं मिसाल के तौर पर, एक क्रिकेट टीम में तो 11 प्लेयर ही होते हैं ना, विकेट कीपर भी होने, कैप्टन भी होने, फास्ट बॉलर्स भी होने, स्पिनर्स भी होने। अब उसकी क्वालिटी क्या है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है, अक्ल है नहीं है, डिलीवरी है नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है या नहीं है, विल ऑब्वियसली बी शोन विद द रिजल्ट्स। सो ये सारी चीजें होना तो जरूरी है। मतलब अगर किसी नहीं होगी तो आप उसको कोई और नाम ले लेंगे, बट you have to have a financial decision making body of the cabinet जहां exclusively financial decision making के लिए जाए, because larger cabinet में वो सारी चीजें बात इतने डिटेल से हो भी नहीं सकती, because उसमें तो बहुत सी सब कैबिनेट कमेटीज का, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का भी आ रहा होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का भी आ रहा होता है, ईसीसी के भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं, और दूसरे जो भी मुख्तलिफ और दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज और दूसरे इश्यूज भी आ रहे हैं। सो हियर इज अ where all the economy related ministers are present, state ministers of economy are present. ECC में गवर्नर स्टेट बैंक होता है, SEC की चेयरमैन होता है, सेक्रेटरीज, रेलेवेंट सेक्रेटरीज होते हैं। एंड आई थिंक मेरे जो एक्सपीरियंस है, ECC इज रन यूज्ड टू बी run far more effectively than say the cabinet itself, because focus होता था, आपने प्रपोजल्स आ रहे हैं, समरीज आ रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ से गैस की कोई प्राइसिंग के हवाले से है, गैस LNG के हवाले से है, या पेट्रोलियम रिलेटेड इश्यूज है, या फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज है, IMF रिलेटेड इश्यूज है, तो एक अच्छा मीनिंगफुल डिस्कशन उसमें होती थी। और होनी, अगर इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, हमारे एक दोस्त हैं कराची में, शायद आप मिले होंगे, असद जमान साहब, नहीं अरशद जमान साहब, चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे प्लानिंग कमीशन के, वंडरफुल मैन, आई मीन इज अ bit of a fundamental, but nevertheless, a great guy, lovely to talk to, and a very good economist. तो अरशद साहब ने नाम रखा हुआ है ECC का, एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस कमेटी, कि ये सिवाय एग्जेम्पशन कंसेशन देने की और कुछ नहीं करती। मैं भी ECC में 3 साल बैठा, मैं एक ही चीज़, हफीज़ शेख मेरा उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं एक ही चीज़ से कहता था, वो चेयर करता था, यार हफीज़ कभी मुझे बता दो जब हम बैठ के कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, हम कभी ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमी की बात करेंगे, हम कभी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, हम कभी बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की, वो तो इसी से बातें होती नहीं, इट्स ओनली एग्जाम्पशंस कंसेशंस। कैबिनेट में भी यही हालत है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फोरम्स होने चाहिए। ये जो कमिटीज़ हैं प्राइवेटाइजेशन वगैरह, इनमें मैं बैठा हूँ, वो जल्दी जल्दी मीटिंग होती है, 5 मिनट में लोग आ गए, कुछ दिन से आए, कुछ पहले आए, और सेक्रेटरी साहब मीटिंग रन कर रहे होते हैं। अब सेक्रेटरी साहब तो अपना एजेंडा लेके आए, रिसर्च कोई नहीं होती, तो इससे कैसे मुल्क चलेंगे? वो आपकी बात देखिए, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इसहाक डार, लेकिन इसहाक डार ECC को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं। और ये मैं पीरियड बात कर रहा हूँ 2013 से 2016 में मैं ECC में होता था। तो वो उसको नॉट एग्जैक्टली द वे इट शुड बी, बट आई थिंक उसमें बहुत जिसको आप कहते हैं कि अच्छी डिबेट भी होती थी। हारून अख्तर थे, मिर्जा इस्माइल थे, ये जो तारिक बाजवा जो पहले स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे,
और भी एक दो लोग मैं भूल रहा हूँ, ये इनकी वजह से एक अच्छी डिबेट होती थी, तो चैलेंज होता था लार्जर मैक्रो इशू पर, ये क्या लेके आ गए, छोटे से समरी लेके आके और आप कह रहे हैं कि जी अच्छा हाँ आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। एंड इसाक यूज्ड टू अलाउ, और 6-6 घंटे 7-7 घंटे भी मीटिंग चलती थी, मतलब वो लिमिट नहीं होता था कि जो आपने कहा ना कि 5 मिनट ओ जी मैंने इधर भी जाना है और उधर भी जाना है, मिनिस्टर घूमने जा रहे हैं, सो एवरीवन न्यू एंड अंडरस्टूड कि जी उसमें लार्जली मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत सी दफा नहीं भी होती थी और ये होता था। बट आपकी बात सही है कि देखिए ना, अभी एक समरी एकदम से आगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से, और उसमें गैस प्राइसिंग की बात है। अब मैंने तो पूरी बात समझ ली है ना, मुझे क्या आप एकदम से कह रहे हैं कि इतने सेंट से इतने सेंट करते हैं, मतलब होगा क्या, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को क्या फायदा या नुकसान होगा। तो जब तक ये नहीं समझ आएगी तो आप हाँ या ना कैसे करेंगे। अच्छा, ज्यादातर जो पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मिनिस्टर्स हमारे ऐसे होते हैं कि उनसे इशारदार भी खुद भी वो उनको पता है कि ये कुछ नहीं प्रिपेयर्ड, इसको कुछ नहीं पता, तो वो कहेंगे "ओ जी तुसी दसो", तो हाँ जी ठीक है, ठीक है क्या ठीक है भाई, आगे भी तो बताया कुछ। तो अब ये तो देखे ना, अब ये मसला वही क्रिकेट टीम वाला है ना, पॉलिटिशियन जिसने इलेक्ट होके आए हैं और उसको पेट्रोलियम या प्लानिंग या फाइनेंस या वो महकमे दे दिए, तो अब वही करेगा ना, उसके बदले आप कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर ये बताइए, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द समरी एंड द टाइम टेकन टू कंसिडर? फॉर एग्जाम्पल देखें, यू वर इन IBM, आप मुझे बताइए, आई एम श्योर यू बीन थ्रू मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ IBM, यू बीन थ्रू मैनी स्ट्रेटजीज ऑफ IBM। आपके यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे डिसीजन, जैसे कि अमेजोन में अभी बड़ी मजेदार बात उसने, जेफ बीजोस ने की है, अमेजोन ने पावर पॉइंट बैन कर दिया, उसने कहा पावर पॉइंट नहीं आ सकता। दूसरा उसने कहा है कि भाई आपको, मुझे लंबे लंबे पेपर भी चाहिए, मुझे 8 पेज की उसने बता दिया मेमो चाहिए, और उसने कहा 8 पेज का मेमो जो है बड़े केयरफुली रिव्यू होके डिफरेंट डिपार्टमेंट से मेरे पास आए, और वो 8 पेज का मेमो लोग कहते हैं 6-6 महीने लगाते हैं लिखने में, और फिर जब उसके पास आता है तो वो कहता है भाई अब हमारी जो कैबिनेट मीटिंग है, वो कहते हैं पहला आधा घंटा आप बैठ के इसको पढ़ें। ये नहीं हो सकता कि आप, मैं अस्यूम कर लूँ आपने पढ़ा हुआ है, पहले आधा घंटा बैठ के पढ़े, नोट्स बनाए, फिर आप बैठ के डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब मुझे बताइए, मैंने देखा, मैं जब IMF में था फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो कैबिनेट था, बोर्ड, उसको हमें चीज़ें देनी होती थी, जो भी फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, फलानी चीज़ है, पाकिस्तान का प्रोग्राम है, वो देना होता था, पर हम 6 महीने पहले से तैयारी करते थे। 6 महीने, बल्कि साल भी कई दफ़ा लगता था एक पेपर प्रिपेयर करने। हमें बोर्ड को एक कंप्लीट पेपर देना होता था विद ऑल द ऑप्शन एंड ऑल द रिसर्च। हमें सिर्फ सवाल पूछे जाते थे मीटिंग में, ये नहीं होता था मीटिंग में हमें रैम्बलिंग, बल्कि उस बोर्ड पहले से अपने रिटन कमेंट्स भी देता था, पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर था। अब मैं यहाँ जब देखता था तो एक तो समरी लास्ट मिनट पे आ जाती, दूसरी समरी जब पूछो कि भाई आपने किसी से रिव्यू करवाई है, हमें तो 3-4 डिपार्टमेंट से रिव्यू करवानी पड़ती थी, ठीक है भाई, प्लानिंग में फाइनेंस वगैरह कोई रिव्यू करके दे, वो भी नहीं होता था। तीसरा, आपके वजह समरी आती है, 1 पेज लिखा होता है, उसमें कुछ भी नहीं समझ आ रही होती क्या होता है। साथ आपने पुराने तरीके फाइलिंग के लगाए हो बिफोर द इंटरनेट, क्या पुरानी पुरानी फाइलें निकाल के चेपिए लगाते हैं, यार वो कौन पढ़ सकता है। तो वाई इज इट दैट द क्वालिटी ऑफ द समरी हैज नॉट इम्प्रूव्ड। और नंबर 2, जब मैं IMF में था फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ देनी थी बोर्ड को, अनलेस वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जब MD कोई उनको देता था छूट, हमें 3 हफ्ते पहले देनी होती थी, और 3 हफ्ते बोर्ड को कंसिडरेशन के मिलते थे, उनके भी स्टाफ होता था कंसिडरेशन के लिए। यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्रोसेस है। फिर मिनट्स भी बोर्ड के सर पे ऐसा। अब यहाँ कैबिनेट की समरी बोर्ड मिनट्स आते हैं या कोई ऐसी चीज़ आते हैं, लेकिन आपकी बात सही है, जैसा ECC में समरी जो है बहुत सी दफा लेट नाइट आती थी, दूसरे दिन सुबह को ECC है, ठीक है? और लेट नाइट का मतलब ये है कि आपको अब ऑब्वियसली, जैसा अब मैंने तैयारी करके जाना, और मैं इस सालदार के फेवर में हूं, क्योंकि आई थिंक वो महसूस करते हैं मैं उनकी खिंचाई बहुत करता हूँ, तो आज मौका मिला उनके लिए थोड़े अच्छे, यूज्ड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक। तो बहुत दफा उनका 12 बजे के बाद रात को फोन आता था, और वो यही कह रहे थे यार आपने ये समरी जो आई है आपने पढ़ी है इसको। तो पॉइंट ये था कि देवर देयर आर फ्यू पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड, बट लैक ऑफ टाइम, भाई रात के
11:30 बजे मिनिस्टर्स एनक्लेव में हर घर में जाके आपकी समरी आ रही है, तो वो तैयारी क्या करेगा? Well, he could be busy with something else, and the decision making obviously will be flawed. But let me just एक मैं थोड़ा सा आपसे disagree जरूर करूंगा, लेकिन हर एक का तजर्बे का डिफरेंट होता है. Some people are able to grasp it because of their experience much faster than the others. So you can't put the same tag on everyone कि इतना टाइम हर एक को चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिसीजन मेकिंग के फ्लॉ में, जो हमारे यहाँ आपको याद हो, एक बड़ा फेमस केस हुआ था इमरान खान की हुकूमत में, जब एक जहाज क्रैश हुआ कराची में, तो एज यूजुअल वो कमेटी बनी. उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर जो थे वो उसको हेड कर रहे थे. सो आफ्टर अ मंथ और सो ही गोज टू द पार्लियामेंट, एंड पीपल ऑब्वियसली वर एक्सपेक्टिंग कि वो अब बताएंगे कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से क्रैश हुआ और क्या करेक्टिव मेजर्स लेने की बात होगी गोइंग फॉरवर्ड एंड सो ऑन. तो आपको याद है वो फेमसली उन्होंने कहा कि हमारे जो पायलट्स हैं, पता नहीं 1/3 या 2/3 उनकी तो डिग्रीज ही जाली हैं, ठीक है. और इट हैड सच अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान कि वो सारा कुछ बिल्कुल. तो मैंने एक दफा उस वक्त के 2-3 मिनिस्टर्स थे, मैंने कहा कि कह रहे कि क्या खराबी थी इसमें. मैंने कहा जी मुझे नहीं पता क्या खराबी थी, बट डिसीजन मेकिंग की जो की थी, it should have been should have got the blessing of the prime minister because he was going to make a big statement. I'm not talking about he should have prepared a bloody 30 pages report, बट अगर उसने जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होते हैं कि भाई ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आपके जो पायलट्स हैं इनकी डिग्रीज ज्यादा होती है, या 1/3 की या 2/3 की. तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपने कहा कि अवाम से कुछ नहीं छिपाना. तो ये बड़ा एक पॉजिटिव एलिमेंट है. प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा हाँ जी ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी डाउन साइड भी है. जैसे हर फैसले में एक अपसाइड होती है, डाउन साइड भी होती है. और फैसला मुश्किल इसलिए होता है कि 19-20 का फर्क होता है. फैसला आसान नहीं होता, फर्क ही इसलिए होता है कि 19-20 का होता है, और ज्यादा तजर्बा का जो होता है वो ही और शी इज एबल टू टेक दैट फाइन डिफरेंस कि ओके देयर इज अ डाउन साइड टू इट, but we'll go ahead because the upside is better, and what risks are there और क्या हम कर सकते हैं कि वो जो डाउन साइड को कंटेन करने. मैंने कहा क्या उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर के 10 मिनट का उन्होंने बताना था कि जी ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसके साथ एक और चीज ये है कि पाकिस्तान की जगरसाई होगी. पहले पाकिस्तान का इमेज बड़ा खराब है. लोग कहेंगे यार इतनी नेशनल एयरलाइन में इतने इनके जाली पायलट्स हैं, इनका सिविल एविएशन का सिस्टम क्या है. दैट विल बी चैलेंज. हमारे पायलट्स बहुत से दूसरे एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, दे विल बी ग्राउंडेड. हमारी जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे ऊपर बहुत बुरे बैन लग सकते हैं. दैट विल हैव अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस शीट. तो आपकी वो जो कैन यू कंटेन ऑल ऑफ दैट की 4-5 हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो कि हाँ फिर भी ये सारे सुनने के बाद यस गो हेड विद इट, तो फिर तो मैं कहूंगा चलो उसने जो भी किया था, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि एक फैसला साजी का एक तरीकेकार था, चाहे वो प्रेजेंटेशन से कहता, चाहे वो जुबानी बताता, बट वॉज देयर अ प्रोसेस? एंड देयर वाज नो प्रोसेस. देयर वाज नो प्रोसेस, एंड दैट क्लियरली डिफाइंस कि भाई आप जब करते हैं तो आप अपसेट. और मैं आपको बता रहा हूँ एक अपना एक शेयर कर रहा हूँ कि एक इशू था, बड़ा बड़ा मेजर इशू था, और उसमें मैं बाहर गया था, एंड आई केम बैक और पता चला कि वो फैसला हो चुका. चलिए मैं आपको बता दें, तो पीआईए का एक पीआईए बी बनाना था, एक नया पीआईए. मतलब एक तरफ हम पीआईए प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक पीआईए बी बनाने जा रहे हैं. So I was told a night before when I arrived back, and tomorrow is a meeting to finalize the plan to make a new airline, PIE. And I was told by some very important minister कि यार जो है इसको अपोज करना ये बड़ा खराब है. एनीवेज, सो ये को मार्च अप्रैल था, और टिपिकली जैसे हमारा होता है शहनशाह कि अगस्त 14 को पहली फ्लाइट लंदन जाएगी, और न्यू यूनिफॉर्म्स भी आ चुके थे कि जी ये मर्दों का होगा, स्टीवर्ड्स का, ये पायलट्स का, एयरोहोस्टेस का. सो दोस थिंग्स आर डिस्कसिंग. सो आई वाज टेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब आप मेरे पॉइंट सुन लें, इसके आपको शायद पता है बहुत सीरियस डाउन से है. So one by one I was telling, and after each one of them he was saying प्लीज वैसा फैसला हो चुका है. मैंने कहा सर मेरे पहले आप सारे इतराजात सुन लें, फिर आपने जो फैसला करें, because I don't want to leave this room until unless I have come up with identifying the downside of it, and there's hardly an upside of it. और फाइनली मैंने उनको जब 5-6 के बाद एक लास्ट बताया
कि सर लास्ट जो है कि बाय द टाइम यू गो इनटू इलेक्शन इन 2018 आपकी जो दोनों एयरलाइंस है ना, एक पीआईए ओरिजिनल और पीआईए बी जो है, वो रेड ही ब्लड होगा फाइनेंशियल्स के हवाले से, क्योंकि आप सबसे लुक्रेटिव प्राइस उधर दे रहे हैं पीआईए बी को। तो भाई जो कॉस्ट सेंटर वहां जो पड़ा हुआ है उसकी उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कहां से आएगा? सही करें। तो उन्होंने एग्री कर लिया, ही एग्रीड, आप इनके पॉइंट्स तो बिल्कुल सही हैं। तो बात ये है कि जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रॉपर भी आप ना उसमें जाएं, और इस डर और खौफ से कि जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, वो सुन के कहेगा यार आप तो हमेशा इतराजात करते हैं। बिल्कुल। जुबैर साहब, एक और भी तो दुनिया ने तरीका बनाया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल, मैं देखता हूँ कि वलायत में एक पुरानी ट्रेडिशन है कि जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं या कोई नई चीज़ बनाते हैं तो पहले वाइट पेपर इशू करते हैं, पब्लिक में डिबेट होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ को लॉ बनाते हैं, फिर लॉ भी पब्लिक में डिबेट होने देते हैं, फिर आप करते हैं। हमारे यहाँ रात के अंधेरे में एकदम चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, केस इन पॉइंट अभी बन रही है एक, मैं हारून अख्तर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है। कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस महीने या अगले महीने आ जानी है। हमने आज तक एक मुसवदा उसका नहीं देखा, अखबारों में टिटबिट्स देखे हैं पर कोई मुसवदा नहीं देखा। अब मुझे बताइए, क्या पहले वाइट पेपर नहीं आना चाहिए? क्या हमें पता चलना चाहिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन बनाता है? पिछली बार जब बनी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मुझे याद है FCDO के बंदों ने बनाई थी, ठीक है। इसी तरह आप देखें, हमारी बहुत सारी चीज़ें FCDO, PFM लॉ हमारी FCDO ने बनाई, हमारी नेपरा की लॉ USAID ने बनाई। हम तो, मुझे लगता है कि गोरे ने हमें आज़ादी तो दी है, सोच उसने अपने पास रख ली है, पॉलिसी अपने पास रख ली है। क्या ये बात सही है? क्या कैबिनेट में मैंने देखा है अक्सर वर्ल्ड बैंक ADB के पेपर्स आ जाते हैं पर हमारे लोकल जो चीज़ें वो नहीं आती। और अक्सर अब हमने बनाया, फॉर एग्जांपल, आई थिंक पिछली गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट ने, मुझे भूल गया, बनाया था ह्यूमन कैपिटल पे पॉलिसी। उसमें सारे एड एजेंसीज के बंदे थे, अपने नहीं थे। हमने अभी एक होम ग्रोन प्लान की वो किया है अनाउंसमेंट, उसमें एक ऑक्सफोर्ड से बंदा आ रहा है, स्टेफन डर्कन, वो होम ग्रोन प्लान हमारा बना रहा है। McKinsey को हमने बेतहाशा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए यहाँ एक वो है FBR की जो है, आपने IT, वो McKinsey को दी हुई है। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, हमारे दोस्त की एक फर्म है बड़ी अच्छी, सिस्टम्स लिमिटेड, आप भी जानते होंगे, मतलब हाईली क्वालिफाइड फर्म है, उसको क्यों नहीं हम दे रहे? वाई आर वी गिविंग इट टू McKinsey? ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और आई हुई है, यहाँ बैठी हुई है कंपनी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी बैठी हुई बड़े पैसे ले रही है। तो क्या हमारी हुकूमत आउटसोर्स्ड है? और क्या हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि नहीं? मैं देखता हूँ मिनिस्ट्री को रिपोर्टें नहीं छापती, ना कैबिनेट के मिनट्स सामने आते हैं। आप देखिए, अमेरिका में कैबिनेट के मिनट्स 15 साल के बाद रिलीज हो जाते हैं, हमारे यहाँ भी रिलीज होने चाहिए, क्यों नहीं होता ये सब कुछ? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने का डिबेट है उसकी, इससे भी बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी बड़ी एग्जांपल है 26वीं अमेंडमेंट। 26वीं अमेंडमेंट मुझे एग्जैक्ट डेट याद है कि 15 सितंबर, 16 सितंबर संडे था। उस दिन सुबह को 9:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, एंड कैबिनेट वुड हैव अप्रूव्ड एंड देन इट वुड हैव कम टू द पार्लियामेंट। रात तक काबीना के लोगों को नहीं पता था कि क्या है। और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी वो काबीना अप्रूव करेगी, लेकिन काबीना के पास डिबेट करने के लिए उसमें को 75 आइटम्स होंगे उस दिन काबीना को डिस्कस करने के लिए, उसमें से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा। अब कौन उसमें डिबेट करना चाहेगा? उसको ज्यादा अगर कोई 2 दफा बोलेगा तो उसको कहेंगे यार बात सुने, आप इनसे, हारून अख्तर साहब आप इनको अलग से प्राइवेटली मिल रहे। बस बात खत्म हो जाएगी। अब वो समझा, अप्रूव तो पहले ही हो गई है ना। वो डिबेट, भाई डिबेट का मतलब ये होता है कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम ला रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट द मिनिस्टर कंसर्न, लाइक इन दिस केस Arun Akhtar, should have done was to come and make address a press conference। सारे उसके बिजनेस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड मीडिया मौजूद होती और उसमें वो सबसे पहले फ्लोट करते कि हम ये करने जा रहे हैं, एंड वी वांट टू ड्रॉ सजेशंस फ्रॉम द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, और इसको आप डिबेट करें और आप पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी आए और ये भी आए, और मैं भी आपके फोरम्स में आने के लिए तैयार हूँ ताकि हमारे जो भी कंसर्न, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हर 6 महीने के बाद तो बननी नहीं है। तो उसमें हर स्टेक होल्डर को जब आप मौका देंगे उसके बाद फ्रेम होगी, तो ऑब्वियसली लॉजिकल है कि दैट विल हैव फार बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस देन द वन दैट इज नेवर डिबेटेड। और मुझे जो बताया गया था वो तो अगस्त के एंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी थी,
अब वो कहते हैं अगर उन्होंने डिस्कस किया होगा तो 2-4 बिजनेसमैन से डिस्कस किया होगा, बट इट इज नेवर पुट फॉर डिबेट। और उन बिजनेसमैन से डिस्कस किया होगा जो कभी हुकूमत को चैलेंज करते ही नहीं, कभी वो अपोज ही नहीं करते, वो उसमें भी अपनी बेहतरी समझते हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ ऐसे नहीं, इसको यहाँ से हटा के ये करते हैं, ये करते हैं। तो यस, डिबेट इज अ लाजमी जुज। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी अबाउट? अब डेमोक्रेसी को छोड़ दे, चाइना में भी अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वहां भी कुछ जो पॉलिसी, I mean, there are valid reasons for China's success, and they must have done all those things जो कि एक बेसिक मॉडल हर कंट्री के मॉडल में होना चाहिए, कि अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स के साथ आपका डिबेट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं उसमें फिर बेहतरी आती है। बट इफ यू कम अप विद सच अ थिंग, हमारा तो मैं वैसे हिस्टोरिकल बता रहा हूँ कि जिस दिन 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, तो 17 की रात को याया खान ने, शायद आपको पता ही नहीं, तकरीर की थी एड्रेस टू द नेशन। जब तक हम ये नहीं मान रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया तो हम लड़ते रहेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट द मोर इंटरेस्टिंग थिंग वाज ही अनाउंस्ड दैट टुमारो ही विल बी promulgating a new constitution for Pakistan. Hmm. Hmm. Remember कि there was no constitution at that time. 62 Right. वाला जो था Hmm. वो एब्रोगेट कर दिया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान did not have until the 1973 constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, the president of Pakistan was to unleash a new constitution, वो तो circumstances and change and वो सारा कुछ जो political हुआ। अब देखिए, जो जो मसला मेरे दिमाग में ना वो ये है कि दुनिया बहुत रैपिडली बदल रही है। एज यू विल नो मोर देन मी, यू नो दैट दुनिया कितनी, यू कम फ्रॉम द आईटी वर्ल्ड, दुनिया कितनी रैपिडली बदल रही है। हम वही पुराने चीज में बैठे हुए जिसको मैं कहता हूँ हक हैग मॉडल। महबूबुल हक और हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप, उन्होंने मॉडल बनाया था कि प्रोजेक्ट चलाओ, सड़कें बनाओ, ये बनाओ। हम उसी चीज़ में बैठे हुए, सड़कें बनाओ, ये करो, वो करो। अब मैं कई दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ, मेरे उस्ताद था रॉबर्ट लूकस, जिसने मॉडल ही बदल दिया। उसने कहा भाई, और अब आपने देखा होगा पिछले साल का नोबेल प्राइज़ में वाई नेशंस फेल, एक किताब है बहुत फेमस, आपने पढ़ी होगी। वो सब कहते हैं कि यार ये सड़कें बनाने से कुछ नहीं होना, और ख़ास तौर पे अब आईटी के दुनिया में तो सब कुछ R&D है। सड़कें क्या हम बनाएंगे? हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं PSTP, मेरा ख्याल PSTP तो अब बहुत फेल्ड मॉडल हो गया, या पुराना मॉडल हो गया, फेल्ड नहीं पुराना मॉडल हो गया। अब मुझे बताइए, जो नया मॉडल आ गया है वो कहते हैं लोग अब बहुत ज़्यादा फोकस करें। मैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लोग आगे निकल गए, वो कहते हैं फोकस ऑन अ पॉलिसी जहाँ के आइडियाज़ इनोवेशन आए, जहाँ के ऑन्टरप्रेन्योरशिप आए, जहाँ के आप चाहे ऑन्टरप्रेन्योरशिप बेशक स्टारबक्स ही हो, स्टारबक्स बड़ी अच्छी ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, चाय खाना ही है, बट उसने चाय खाना को भी 100 बिलियन का बना दिया। आप देखें नाइकी है, नाइकी $50 बिलियन। अब मैकडोनल्ड को देख लें। तो वी नीड ब्रांड नेम्स, वी नीड न्यू आइडियाज, वी नीड न्यू थिंग्स। इसके लिए जो मुझे लगता है, वी नीड मार्केट्स, वी नीड गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग मार्केट्स, इन्वेस्ट इन बेसिक R&D, नॉट R&D बाकी, वी नीड टू बिल्ड एन R&D सिस्टम। अब इन बातों पे तो कोई हुकूमत में ना फोकस कर सकता है ना समझ सकता है। और आप ये बात करो, कहते हो छाड़ यार क्राइसिस आया है तो बड़ी बड़ी गल है, तू आगे की गल कर रहे हैं, ऐ नहीं ऐसी करना। ये मैंने अब आपको आगे, ये मैंने आगे आपको की शुरू बात में है, कहा या था ना कि आप कह रहे हैं ये आप बातें जो इमीडिएट? कर रहे हैं ना, ये बातें सर के ऊपर से गुजरेंगी, क्योंकि जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी थी, आपने मेरे से पूछा था आईबीएम में जब कुछ होता था, तो जितनी भी मेजर कॉर्पोरेट्स हैं, और innovation is a major part of it. I mean, there are corporates who realize that they have been left behind. Someone else. I mean, there are examples आपने जो की है, नोकिया नहीं कर रहा था कुछ, और नोकिया पीछे रह गया है, पर आगे निकल के चला गया है। नाइके की एग्जांपल आप ले लें, और बहुत से ब्रांड्स हैं। 1992 में when I joined IBM in the 80s, we were told and felt that we are the number one corporate in the world. Business Week के, Fortune के cover story, which is the best company in the world, हर एक IBM है। Until 1992, when the financial results came, so $5 billion का loss first time in 70 years. And the company realized, what the hell, what has happened? वो जो दूसरे ये Apple और Microsoft और ये सारे थे, ये आए और कहाँ से कहाँ निकल गए? The markets had changed and IBM did not realize that. So उन्होंने within weeks पूरे का पूरा उठा के सिस्टम चेंज करके रख दिया. For the first time, they brought a CEO and chairman of the board from a non-IT market. वो अमेरिकन एक्सप्रेस में और मालबोरो में काम कर चुका था, लूक गस्टर. He wrote a book later, How to Turn an Elephant to Turn Around an Elephant. तो वो
बात ये होती है कि ये तो आपका टू कीप पेस विद द मार्केट, व्हाट इज ट्रू टुडे आई एंड यू आर डिस्कसिंग विल नॉट बी ट्रू 5 years फ्रॉम नाउ, एंड वी हैव टू कीप पेस। हम वही मॉडल पर चल रहे हैं जो आपने महमूद प्रोडक्ट, रोडें बनाओ, पुल बनाओ, अंडर पासेस बनाओ। सो अभी मैं इस्लामाबाद में आया तो मेरा एक दोस्त मिनिस्टर बता रहा था, हैव यू नॉट फेल्ट द चेंज इन इस्लामाबाद? यस आई सेड या, व्हाट चेंज? कह रहे कितने अंडर पास है, देखिए आपने कितने खूबसूरत है, कितने हमने ओवरहेड्स बनाए। I said, what about education? What about health? What about all of this? कह रहा यार आप उधर ही पड़े रहना, लोगों की कुछ और ख्वाहिश है। मैंने कहा लोगों की नहीं है, ये एलीट की ख्वाहिश है। एलीट जो मैं और आप जिनके साथ कोसार में बैठ के बातें करते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं इन चीज से, बिकॉज उनके पेट भरे हुए हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो क्यों कहेंगे? सो एक तो इंटेलेक्चुअल, there's a lack of intellectual depth in a political class. I mean, मैं किसी और को नहीं कह रहा, लेट्स से मेरे में भी आप शामिल कर लें हम सब। सो वो जो एक इनपुट होना चाहिए। तो मैं आईबीएम की जो एग्जांपल दे रहा था, जो लोग इनोवेशन की बात कर रहे थे, वो फाइनेंस, वो सीएफओ का काम नहीं है, वो सेल्स के हेड का काम नहीं है, वो अपनी मार्केट को चला रहे हैं। समवन एल्स इज कमिंग, बट यू हैव टू, आफ्टर एवरी 3-4 months they will come up with something. You have to create this new market, you have to withdraw from this market, you have to मतलब हर चीज आपका एक रिसर्च सेल है जो कि काम कर रहा है हर कंपनी में। ये बताइए ना जी, जो आपके यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देर हो रही है बट आई मस्ट आस्क यू दिस, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग बड़ी लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो गूगल वगैरह जो रोबोट्स बना रहे हैं, वो कोई 10 साल से बना रहे हैं, 20 साल से बना रहे हैं, पता कितनी देर से बना रहे हैं। हम उनके कुत्ते रोज़ देखते हैं, वो अभी तक मार्केट में कुछ नहीं आया, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, वो वेमो अब मार्केट में आ रही है, वेमो पता नहीं कितने साल से बन रही है, ठीक है। आईबीएम ने वॉटसन भी कितने साल से बनाया हुआ है, और वॉटसन भी एक किस्म का मार्केट में पर फुल्ली अभी नहीं आया, ठीक है। पर वॉटसन भी ओवरटेक हो गया विद चैट जीपीटी और समथिंग, ठीक है। तो मसला ये है कि ये एक चलती रहती है, समुंदर चल रहा है, टाइड आती है, ये होता है वो होता है। इसमें आप लोग कैसे सर्वाइव करते थे? हाउ डिड यू प्लान लॉन्ग टर्म, एंड कैन वी लर्न एनीथिंग अबाउट दैट इन पाकिस्तान? लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस नो लॉन्ग टर्म प्लान। और उसमें भी ये होते हैं जो आपने जैसा फॉर एग्जांपल कहते हैं शिफाशी स्पीड, द स्पीड रेफर्स टू व्हाट, द कॉन्सेप्ट आप देखिए, द स्पीड रेफर्स टू 9 महीने में ये पुल बनाने, या 6 महीने में ये अंडरपास बनाने। So that is what the speed is. So there is no research going on. There is no intellectual debate going on. There is no one who is. But what can we learn? What can we learn from the corporate world in America to run business here? For example, देखिए ना, एलन मस्क न्यूरलिंक बना रहा है पिछले कोई 10-15 साल से, पैसे भी मिली जा रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है, कर रहा है वो इसी तरह स्पेस एक्स कर रहा है। मतलब वो दे आर ड्रीमिंग ऑफ बिग थिंग्स। हम अभी तक लूमे लगा रहे हैं और ये करें। कैन वी ब्रेक आउट दिस? कैन वी गेट इनटू द वर्ल्ड जो कि आगे आ रहा है? I mean, let's be honest about it. What the environment in America is, no other country in the world has. That is why they come up with innovations. Twitter इसलिए अमेरिकन ने किया था, Facebook अमेरिकन ने किया था, Microsoft अमेरिकन ने किया था, Apple अमेरिकन ने किया था। Clearly means they have an environment where there is an intellectual debate, तो हम क्या उनसे सीख सकते हैं? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? I think देखें, if you come, let me put it this way, if you come into some position again, let's say, and I hope you do, what would you recommend to the government going forward? कि यार खुदा के वास्ते, we have to leapfrog. We can't continue to do dooms and ये वो. We have to leapfrog and come into the modern world. How do we do it? ये जो चीजें हैं ना, देखिए इसमें अब आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आए या जो पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आए। देखिए सबसे पहले अगर आप इस फिक्र को छोड़ देंगे कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी, तो आप अच्छे काम कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए ना, ये शॉर्ट टर्म की होती है, जो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म हॉरिजन आपका हो, यार अगर ये करेंगे तो ये आपने इनको खुश कर देंगे, ये करेंगे तो इनको खुश कर देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो देखिए कोई भी चीज होती है उसमें पेशेंस चाहिए, उसमें बड़ा हार्ड वर्क चाहिए होता है। द रिजल्ट्स डोंट कम इजी। टैक्स रिफॉर्म्स ले लो, लेट्स टेक टैक्स रिफॉर्म, अब एनर्जी रिफॉर्म्स ले, रिफॉर्म्स आर पेनफुल, रिफॉर्म्स टेक लॉन्गर टाइम, रिफॉर्म्स डोंट गिव यू 3 month रिजल्ट्स इन 3 months। सो यू हैव टू बी रेडी कि अगर तो आपने पाकिस्तान को अपना फोकस रखना और ये देखना कि चाहे इसके रिजल्ट्स 5 साल में आए, या 4 साल में आए, या 6 साल,
हुकूमत, और वैसे मैं ऑन अ लाइटर साइड भी कहता हूँ, भाई हुकूमत तो आपकी वैसी जानी है, आज तक कोई 4 साल से ऊपर गया नहीं, तो आप कैसे रुकेंगे? तो जब हुकूमत ही जानी है, डू समथिंग व्हिच इज वर्थवाइल, डोंट वरी अबाउट कि हुकूमत चली जाए। कोई भी रिफॉर्म्स पाकिस्तान में अगर आने हैं, इंडिया ने रिफॉर्म्स किए थे 1991 में स्टार्ट किए, they were painful. What was the message of Manmohan Singh, then the finance minister, to the prime minister? कि ये इतने पेनफुल होंगे, हुकूमत आपको मारेगी, जूते मारे, and you might lose the election. They lost the elections, Congress party, subsequently. So आपको जब आप अगर पाकिस्तान को अपना हदफ रखें, और आप अगर पहली स्पीच पार्लियामेंट में करें कि यार ये मैंने, लेट्स गो फॉर वंस टू फिक्स पाकिस्तान once and for all, और उसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ over a period of time that you might not see the results within 6 months. वो जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं ना कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं 6 महीने में कीमतें गिरा दूंगा और आटा फ्री कर दूंगा। That doesn't happen. That is not possible. So why are you committing those things? Do something. Get some good educated people जो सामने लाइमलाइट में ना हो आपके, जिस तरह वो होती है ना एक इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो होती है, जो आप 90% प्राइवेट सेक्टर से देते हैं, वो आप वो लें जो कि बैकग्राउंड में बैठ के काम करें, और आप उनके साथ रेगुलर एक इंटरेक्शन करें कि what are they proposing. So after 1 month or 2 months, they will propose a major overhaul of your entire bureaucratic system, entire economic model, and so on and so forth. And then you take it from there. Zubair Sahab, it's been a great pleasure. There's lots more to talk, but I can't ignore my listeners point कि यार ज़्यादा लंबे ना किया करो, ये भी लंबा हो गया. Inshallah, I'll bother you again because there's lots more things to talk about, lots to learn about. Thank you very much for your generous time. Bye-bye.